Jai Swaminarayan, SSGM School CBSE runs by Sri Sajanan Gurukul Mankoa heartily welcomes you to the online education. Students, I myself Chintan Upadhyay, students of class 6th, today we are going to learn chapter number 1, that is the best Christmas present in the world, which is written already over here. This chapter is from textbook, and today I am going to explain you this chapter, and based on that we perform question and answers. Okay, so I am explaining chapter. So before we start, why it is called the best Christmas present in the world? Because there was one letter is to be sent to his wife, and after 101 years his wife get this letter. So I am explaining this chapter. The author went to a junk shop in Bridport. Author means ये जो कहानी लिखने वाले हैं वह ऑथर यानी लेखक। लेखक एक दिन कहाँ पर गए? जंक शॉप इन ब्रिडपॉट। ब्रिडपॉट इज अ नेम ऑफ अ विलेज, नेम ऑफ अ प्लेस, और वेयर द ऑथर वेंट। वेयर? तो इन जंक शॉप। जंक शॉप यानी कबाड़ी खाना। Okay. He noticed a roll-top desk. It was very old and made of oak wood. Means he noticed, वहाँ पर वो गए तो देखा कि एक बहुत सी बड़ी सी टेबल थी जो किससे बनी हुई थी, किसके लकड़े से बनी हुई थी? ओक ट्री के लकड़े से बनी हुई थी। It was in a bad condition. It was in a very bad condition. It had burn marks. B-U-R-N, burn marks. Burn marks. Burn marks means जलने के निशान। Burn marks means जलने के निशान। वो टेबल के आसपास और उसके ऊपर जलने के निशान थे। Since it was cheap, the author decided to buy it and get it repaired. लेकिन यह सस्ती थी, इसकी वजह से cheap यानी सस्ता। It was cheap. At that point of time the author decided, और फिर ऑथर ने ऐसा डिसाइड किया, ऑथर ने ऐसा मान लिया कि चलो मैं आज इसको, यह टेबल को खरीद ही लेता हूँ, एंड गेट इट रिपेयर्ड, और फिर मैं उसको रिपेयर कर लूँगा या करवा लूँगा। देन ही बिगन वर्किंग ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, यानी जिस दिन क्रिसमस होता है उसके अगले दिन क्रिसमस की ईव को उन्होंने यह टेबल डेस्क को रिपेयर करना शुरू कर दिया। Now see, he removed the roll top removed, and then tried hard to pull out the drawer. Drawer means it is the things to keep our diaries, notebooks, and all the certain necessary things into the drawer of a table, and then he used to tried very hard to put out that drawer from the table, and then it had suffered much damage due to fire and water, but that drawer was damaged due to fire and water. The drawer was jammed. The drawer was jammed means it is unable to open. That means कि drawer जो है वो खुल नहीं रहा था, वो jam हो गया था। Then he hit it hard with his fist and pulled it out. यानी लेखक ने, ऑथर ने क्या किया? फिस्ट, मुट्ठी, और मुट्ठी ऐसे बंद करके उसके ऊपर ऐसे जोर से मुक्का मारा टेबल के ड्रॉवर के ऊपर, तो वह खुल गया और वह बाहर आ गया। He found a secret drawer underneath, यानी कि उसके अंदर, वो ड्रॉवर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉवर था, यानी कि एक जो जल्दी से दिखे ना वैसा ड्रॉवर उसके अंदर। और he took out a small black tin box, और उसके अंदर, वह सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर एक ब्लैक कलर का टीन यानी ब्लैक कलर का डिब्बा था या बॉक्स था। There was a note on it that said Jim's last letter, और उसके ऊपर एक नोट लिखी हुई थी, Jim's last letter। उसके ऊपर ऐसी नोट लिखी हुई थी बॉक्स के ऊपर, Jim's last letter।
by reading this, which is received on January 25th, 1915. The letter writer also wished to put it in her grave. Over here, the letter itself note says that the letter writer also wished, यानी कि यह जो लेटर लिखने वाले थे उसकी एक आखिरी इच्छा यह थी कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में यह लेटर जो है वो अंदर रखा जाए। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा से भरपूर यह लेखक ने क्या किया, ही ओपन द बॉक्स, उसने वह बॉक्स को ओपन किया। इनसाइड इट ही फाउंड एन एनवेलप विद एड्रेस मिसेस जिम मैकफर्सन, 12th कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट। यानी कि जैसे ही वह एनवेलप बॉक्स ऑथर ने खोला, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने देखा एक लेटर। वो लेटर को जैसे ही वह निकालते और उसने देखा कि यहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है। किसका एड्रेस लिखा हुआ है? मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, डॉर्सेट। द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914। और ये लेटर कब लिखा गया था? 26 दिसंबर 1914. Then the letter had been written by Jim to his wife Connie. यानी कि ये जिम नाम का एक आदमी था, उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था। उसकी वाइफ का नाम था कॉनी। क्या नाम था? कॉनी। यस, जिम्स वाइफ इज Connie, and he was a soldier. Who was soldier? Over here, Jim was a soldier in an British army, and he set against the Germans during the First World War. और वह कहाँ उसकी तैनात थी? वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जर्मनी के खिलाफ होने वाला था उसके लिए वह तैयार था। Jim wrote to her that he was very happy because something wonderful had happened. यानी जिम ने ऐसा बोला कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज बहुत ही कुछ वंडरफुल यानी कुछ अच्छा आज होने वाला है। The soldiers on both sides of the no man's land were taking up positions in their trenches. यानी both soldiers of both side means British army and German army were ready to take their positions. यानी उन लोगों ने अपने अपनी positions ले रखे थे क्योंकि यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो होने वाला था। It was Christmas morning and it was very cold and frosty. यानी कि यह जो सुबह थी वह किसकी सुबह थी? क्रिसमस मॉर्निंग। यानी उस दिन क्या था? क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट बर्थडे। एंड इट वॉज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, यानी वह बहुत ही ठंडा था पूरा दिन। वो मॉर्निंग एकदम सी ठंडी थी। देन जिम सो द जर्मन सोल्जर्स वेविंग अ वाइट फ्लैग। यानी जिम ने देखा कि एक जर्मन सोल्जर है, वो वाइट फ्लैग। वी नो दैट स्टूडेंट्स, द वाइट फ्लैग इज यूज्ड इट्स अ सिंबल ऑफ अ पीस, मीन्स वह एक शांति का प्रतीक बनकर वो एक जर्मन सोल्जर है, वो फ्लैग यानी एक झंडा हाथ में लिए सामने आ रहा था। They were calling out the English soldiers to say Happy Christmas। और फिर वो सब इंग्लिश सोल्जर्स यानी ब्रिटिश सोल्जर्स को विश करने के लिए आ रहे थे कि भाई हैप्पी क्रिसमस। इट वॉज अ बिग सरप्राइज टू ग्रीटेड लाइक फ्रेंड्स बाय द एनिमीज। और ये जो ग्रीटिंग्स थी उन लोगों के लिए कि हम लोगों को एनिमीज यानी हमारे जो दुश्मन है जर्मन, वो हमें यहाँ पे आके आज विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एंड बट इट वॉज वेरी ट्रू नॉट अ ट्रिक। यानी कि ये आखिर में सही में ये लोग उसको विश करने के लिए आ रहे थे। यह कोई युद्ध की रणनीति या कोई ऐसी ट्रिक थी ही नहीं। द इंग्लिश सोल्जर्स ऑल्सो विश देम इन रिटर्न। और फिर ब्रिटिश और इंग्लिश सोल्जर्स ने भी उन लोगों को विश किया इन रिटर्न की हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। देन द लीडर सेड दैट दे वांटेड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल
यानी कि लीडर, वहाँ के लीडर ने बोला है कि हमें यह फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करना चाहिए साथ में। जिम वॉज द ऑफिसर इन कमांड, और फिर यहाँ पे जिम जो था वो ऑफिसर इन कमांड, यानी ही इज द सीनियर मोस्ट ओवर हियर इन दिस पोस्ट, एंड ही अलाउड हिज मेंस, यानी कि उसकी अपनी ट्रूप्स को, उसकी अपनी टुकड़ी को उन्होंने सबको अलाउ किया है कि ठीक है भाई, आप सब साथ में मिलके ये जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट कर सकते हो। एंड देन ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मिंगल्ड इन द मिडल, यानी दोनों मिक्स हो गए। ग्रे कोट्स यानी एक का ड्रेस कोड था ग्रे एंड एक का ड्रेस कोड था खाकी। इन द टाइम ऑफ वॉर दे वर मेकिंग पीस, द जर्मन सोल्जर हु केम फर्स्ट वॉज नेम्स हैंस वॉल्फ, यानी जो जर्मन सोल्जर वो सबसे पहले आया था उसका नाम था हैंस वॉल्फ। हैंस वॉल्फ वॉज अ जर्मन सोल्जर। Okay. Then, before joining the army, he used to play the cello in an orchestra. यानी आर्मी ज्वाइन करने से पहले हंस वॉल्फ नाम का जो जर्मन सोल्जर था वो क्या बजाया करता था? सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। सेलो इज अ नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जिम हैड बीन अ स्कूल टीचर इन डॉर्सेट, और उसके सामने जो जिम था, जो ब्रिटिश ऑफिसर या इंग्लिश ऑफिसर था, वो क्या था? ही वॉज अ स्कूल टीचर in Dorset. Hans lied that he knew Dorset well. In fact, he had read about that place in Hardy's novel Far from the Madding Crowd. फिर हंस वॉल्फ ने बोला कि हाँ, मैं तो डॉर्सेट को जानता हूँ, और बल्कि मैंने हार्डिस की नोवेल में भी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में भी ये डॉर्सेट का नाम सुना हुआ है, और मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। The soldiers from the rival camps smoked, laughed, drank and feasted, यानी कि सभी सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स एज वेल एज ब्रिटिश सोल्जर्स, both started partying hard. They were smoking, laughing, drinking together. Hans said that he liked the marzipan, the sweet covering on Jim's bed. फिर हंस वॉल्फ ने जिम को बोला कि यस, तुम्हारे ब्रेड के ऊपर ये जो स्वीट बटर यानी कि जो जैम लगा हुआ है, इट वॉज वेरी नाइस, यह मुझे बहुत ही पसंद आया। And Jim wrote in the letter that he had never seen or imagined a Christmas party like that. यानी फिर जिम ने अपने लेटर में ये भी लिखा है कि आज तक मैंने ऐसी पार्टी ना तो कभी मैं सोच सकता हूँ, ना तो मेरे दिमाग ख्याल में ऐसा कुछ आया हाथ नहीं कि ऐसी भी पार्टी हो सकती है। They played football also. Both agreed on one point. The countries should have better resolved their disputes by playing a football or cricket match, because no one dies in a match, whereas war leaves behind orphans and विडोज। यानी कि उन लोगों ने सब फिर फुटबॉल भी खेला, और फिर आखिरकार दोनों अग्रीड हुए, एक पॉइंट के ऊपर आए कि यस, यानी कि कोई भी कंट्रीज, हमारी ये जो दोनों कंट्रीज हैं, उन लोगों को वॉर यानी कि बिल्कुल युद्ध करना ही नहीं चाहिए, ना ही हमें लड़ना चाहिए, और बाय प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट मैच बिकॉज नो वन डाइज इन मैच, यानी कि हमें उसके बदले हमें फुटबॉल और क्रिकेट मैच खेलने चाहिए, क्योंकि ऐसी मैच खेलने में किसी की भी मृत्यु यानी कोई भी मरता नहीं है। जबकि ये जो युद्ध होता है, वॉर होता है, विच लीव्स बिहाइंड ऑर्फन्स एंड विडोज, यानी कि युद्ध होता है, युद्ध अपने पीछे क्या छोड़ जाता है? अनाथ और विधवाओं को छोड़ जाता है। इसलिए हमें कभी भी युद्ध, लड़ाई, वॉर, झगड़े करने नहीं चाहिए। The game was finished, so did the drinks and cakes. Jim told Hans that they hoped to see families as soon as the fighting ended by Christmas next year. यानी फिर यहाँ पे जिम ऐसा बोलता है, आखिरकार ये सब पार्टी खत्म हो गई, गेम भी खत्म हो गई, और फिर ऐसा होप, यानी कि उसकी ऐसी इच्छा थी कि नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट क्रिसमस तक ये जो फाइटिंग है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाए और सब लोग खुशी खुशी हैप्पी रहे। The author put the letter back into the envelope and wrote into Britport. और फिर ऑथर ने क्या किया? यह जो लेटर है, एनवेलप था, वो एनवेलप में डाला और वो ब्रिटपॉट लेकर गया।
ही मीन टू हैंड ओवर द लेटर टू कॉनी, और फिर ऑथर ने ऐसा सोचा कि यह जो लेटर है जिम का, मुझे उसकी वाइफ कॉनी को मुझे किसी भी हाल में पहुंचाना चाहिए, डिलीवर तो करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स मिसेस मैकपर्सन को। कॉनी वॉज नाउ 101 ईयर ओल्ड, और फिर अभी कॉनी जो जिम की वाइफ है वो 101 साल की बूढ़ी औरत हो गई थी। हर हाउस हैड कॉट फायर, उसकी घर है जो है वह घर के अंदर आग लगी उसकी वजह से, लेकिन वह बच गई थी। बट नाउ ही इज लिविंग इन अ कंजर्वेटरी, यानी इन अ नर्सिंग होम। then author went to her and then he wished her happy Christmas and gave the letter to her, और फिर यह जो लेटर है ऑथर ने मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस विश करने के बाद यह लेटर किसको हैंड ओवर किया, कॉनी को। एंड शी रिकग्नाइज द राइटिंग ऑफ हर हस्बैंड एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, यानी कि रिकग्नाइज यानी उसने अपने हस्बैंड की राइटिंग को, हैंड राइटिंग को पहचान लिया, और यह लेटर जैसे ही अपने हाथ में पाया शी वॉज बिकम वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हो गई। शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम हु हैड कम होम एज प्रोमिस्ड ऑन क्रिसमस, और फिर उन्होंने क्या किया, ऑथर को मिस्टूक यानी कि उन्होंने गलती से, उसको ऐसा लगा कि ये जो ऑथर है वो एक्चुअली वो ऑथर नहीं है, ही वॉज अ जिम, यानी वह तो मेरा हस्बैंड ही है जो मेरे को क्रिसमस के दिन यह लेटर, और उसने जो प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिसमस के दिन वापस आऊँगा, वो तो मेरा हस्बैंड ही, ऐसा करके उसने ऑथर को लिया। देन शी आस्क्ड हिम टू रीड द लेटर टू हर, शी वॉन्टेड टू लिसन टू द वॉइस ऑफ हर हस्बैंड, यानी फिर उसने क्या किया कि कॉनी ने ऐसा बोला कि प्लीज़ तुम मुझे यह लेटर जो है वो पढ़कर सुनाओ। क्यों सुनाओ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड यानी मेरे पति की आवाज़ सुनना चाहती हूँ, ऐसा करके उसने उसको रिक्वेस्ट किया। देन शी सेड दैट जिम हिमसेल्फ वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, और फिर उसने बोला कि जिम ही मेरे लिए पूरी दुनिया में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड टू हर। Over here by we are completing this chapter. Now we are going to write question and answer. Students, before we proceed to question answer, let me notify you that please go through the chapter number 1 of your textbook once again. Try to find out the new words and prepare your doubts wherever you did not understand, यानी कि जहाँ पर आपको समझ में ना आया वो Microsoft Teams के डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए आप प्लीज़ रेडी रखिएगा। Okay, now we are moving to question and answer. So I am writing question over here. Question number 1, who had written the letter, who had written the letter to whom and to whom and when, and when. So I am writing answer. We know that who had written the letter, that means we know that Jim had written the letter to whom, to his wife Connie or Miss Macpherson, sorry Mrs. Macpherson, and when, we know the date, right? Okay, so I am writing the answer. Jim Macpherson, a captain in the British Army had written that letter dated 26 December 1914 to his wife
Coney. Question number 2. Why did the author go to Bridport? Why did the author go to Bridport? Answer. The author went to Bridport to meet Mrs. McPherson and deliver to her husband's letter. यानी कि वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज टू मीट मिसेस मैकपर्सन एंड डिलीवर टू हर हस्बैंड्स लेटर, यानी उसके हस्बैंड का लेटर देने के लिए ऑथर जो है वो ब्रिडपोर्ट गए थे. सो बिफोर वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 with answers in your notebook. Okay. Question number 3. Why do you think the desk had been sold and when? Question number 3. Why do you think the desk had been sold and when? So I'm writing the answer. The desk must have been sold when Coney's house had burnt. The table had been damaged by fire as well as water. Means a desk क्यों solve हुआ? तो because it was get burned in the Coney's house and then the table was damaged by fire and water. Next question, question number 4. What is Coney's Christmas present? Why is the best Christmas present in the world? Why is the best Christmas present in the world? Okay, before we proceed to answer number 4, students please note down question number 3 with answer and question number 4 also. Okay.
So I'm writing answer of question number 4. Connie thought that Jim had come back home from war. She mistook the author. She mistook the author as Jim. She had been waiting for her husband. Waiting for her husband, Jim. So, the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her. Okay, please note down the answer. Okay, by this we are completing chapter number 1, that is from textbook, The Best Christmas Present in the World. Join Microsoft team for doubt solution. Jai Swaminarayan.